Morning students, in your previous class we were discussing about the shape of production possibility curve. Because of you know that the shape of production possibility curve depend upon the marginal opportunity cost MOC. Then MOC will be increasing, then the production possibility curve having the shape of concave, and the constant MOC, the production possibility curve having the shape of a straight line, and the decreasing marginal opportunity cost, the production possibility curve having the convex shape. In your previous lecture we discussing about the increasing MOC and constant MOC. Today we start from the decreasing MOC in production of two commodity to shifting of the resources in one use to another use. Now let us see with a numerical example. There is two commodity X and Y. X commodity produce 0 unit, then the Y commodity produce 10 units. 10 units. After that, 1 unit of X we sacrifice 4 unit of Y, then getting the 6 unit of Y. After that, shifting the resources from Y goods to X goods and produce 2 unit of X, getting 3 unit of Y. After that, 3 unit of X and 1 unit of Y, then 4 unit of X and 0 unit of Y. In this example, the shifting of resources from Y goods to X goods, then we calculate the marginal opportunity cost MOC. Now let us see the MOC, marginal opportunity cost, is equal to there is no marginal opportunity cost because of all the resources are engaged in production of Y goods. Then the shifting the resources from Y to X, then we get the 1 unit of X. This is our gain, and the Y loss of 4 unit upon 1 is equal to 4. After that, gain 1 unit of X and loss 3 unit of Y is equal to MOC will be 3. And after that, 1 gain and loss 2 by 1 is equal to 2. Loss 1 unit and gain 1 unit, then 1 by 1 is equal to 1. Then we can see the shifting of the resources from Y to X, we getting the decreasing marginal opportunity cost. Decreasing marginal opportunity cost, and that figure we draw on the graph paper. Then 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4,
origin x-axis and we show the x-good, and y-axis shows y-good, y-good, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और सवाल इसको ऊपर बढ़ा देता हूँ मैं, 9 and 10, 1, 2, 4, 5. When we produce the 10 unit of y, then x is 0. Then this is the point. After that, 1 unit of x, 6 unit of y. 1 unit of x, 6 unit of y. 2 unit of x, 3 unit of y. 3 unit of x, 1 unit of y. And 4 unit of x, the 0 unit of y. And that point अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें तो जो हमको कर्व मिलता है, आप देख रहे हो कि दिस इज द कॉन्वेक्स shape of PPC. Then we prove that the PPC having convex shape, concave shape and straight line. But you consider the mostly the production possibility curve generally having the shape of concave to the origin. Because of the shifting of resources in one use to another use, the resources having the less opportunity cost, so that the shape of PPC having the convex shape. लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो केवल और केवल कॉन्वेक्स ही होगा, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कॉन्वेक्स भी हो सकती है। अब हम देखेंगे कि पीपीसी का जो एमओसी पर यूनिट जो हम फाइंड करते हैं, अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो इजीली हम देख सकते हैं। जैसा कि कल थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया था, PPC and marginal opportunity cost. This is the PPC curve P dash origin point, x-axis and y-axis, and any point of A and moving to point B. The movement of A to B, we sacrifice the y good and gain x good, and the ratio of loss of output and gain of output we show in mathematical term. This is the delta y and this is the delta x. This is our gain and this is our loss. Moving A to B, अगर हमें इसका स्लोप पता चल जाए, स्लोप मीन्स अगर इसका हमें टेंजेंट पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो एंगल है जिससे ये यहाँ पे रेशियो जो फाइंड करना है हमें
loss of out upon gain of output. MOC is equal to loss of output upon gain of output, and loss of output upon gain of output, this is, you know that h by b, height and base, तो इसको हम कह सकते हैं किसी tan थीटा। अगर हमको tan थीटा ये एंगल पता चल जाए तो भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि MOC क्या होगी। ओके बेटा, नाउ the next topic, change in PPC. Because of, you know that the construction of PPC, we taking some assumptions. The first assumption is the resources are given, and second is the technology remaining constant, and third is the resources have alternative use. These are the three major assumptions taken by us to construct a production possibility curve. लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंजेस पॉसिबल है या नहीं है। तो नो डाउट उसमें चेंजेस पॉसिबल है। किन सिचुएशन में, आइए देखते हैं। चेंज इन PPC. PPC having the two types of changes. First is known as shifting of PPC, and second is rotation of PPC. मीन्स कि PPC में जो भी चेंजेज होते हैं उस चेंजेज के दो तरह से होते हैं। एक तो शिफ्टिंग हो, PPC कर्व शिफ्ट कर जाए लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, और दूसरा रोटेशन कर जाए वो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड इन रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड वाई। आइए देखते हैं पहले शिफ्टिंग ऑफ PPC। When the resources are increased and decreased, then our PPC curve shift to rightward or leftward. Means there is two causes. ये हमेशा ध्यान रखिएगा, always keep in mind कि PPC में चेंज होने के लिए केवल दो ही फैक्टर रीजनेबल है। जो दो फैक्टर हमने एज्यूम किया था PPC कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिसोर्सेस आर गिवन एंड टेक्नोलॉजी रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, अगर इन दोनों फैक्टर में चेंजेस होंगे तभी पॉसिबल है कि हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंज हो। अगर ऐसा नहीं है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंज पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज टू रीजन टू मेकिंग द चेंजेस in terms of shifting of PPC. The first is increase or decrease of resources, and second is change in technology. अब ये चेंज इन टेक्नोलॉजी ये भी दो तरह की होती है। यहाँ पे जैसे आपने देखा ना इंक्रीज और डिक्रीज, तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में भी चेंज दो तरह का होता है। एक होता है अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड सेकेंड थिंग इज डिग्रेडेशन of technology. Increase or decrease in resources, and second is change in technology, upgradation of technology and degradation of technology. यहाँ हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, अपग्रेडेशन और
डिग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, तो इजीली हम लोग समझते हैं, हम जानते हैं कि आज जो हमारे पास टेक्निक है वो टेक्निक इम्प्रूव कर गई। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हम सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। 2002 में इंडिया में जब मोबाइल आया तो कीपैड मोबाइल था। कीपैड से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई और वो एंड्रॉयड हो गया। अब एंड्रॉयड में भी आप देख रहे हो 2G आया, पहले 3G आया, 4G आया और आज हम 5G की बात कर रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूसली हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है और जब भी हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो इट मीन्स कि इट इंश्योर द मैक्सिमम यूज ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज। दिस इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यही मतलब ही है कि जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं उन रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम इंश्योर कर देते हैं। तो अगर हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर जाए तो हमारी जो प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये तो समझ में आएगा कि अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। लेकिन डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होती है? डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इट मीन्स कि डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर 4G मोबाइल है तो ऐसा थोड़ी कि 3G हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो डिग्रेडेशन कहेंगे किसको? डिग्रेडेशन मीन्स, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स कि दोज टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल इन द सोसाइटी, अवेलेबल इन द वर्ल्ड, बट वी कैन नॉट रीच टू गेट देम। लेकिन हम उसे पाने के लिए उसके पास नहीं पहुंच पाते, मीन्स कि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आ पाती। इसी से रिलेटेड एक वर्ड जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, हम सब लोग, मॉडर्नाइजेशन। क्या है मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन वर्ड ये टेक्नोलॉजी से ही रिलेट करता है। मॉडर्नाइजेशन मीन्स कि वी गेट द मोस्ट अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी एज सून एज पॉसिबल इज नोन एज मॉडर्नाइजेशन। इसी को मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लो कि आप 4 लोग फ्रेंड हो और आप जो चारों लोग फ्रेंड हो तो उसमें से कोई अगर 5G मोबाइल लेके आता है तो अक्सर आप या हम ये कहते हुए पाए जाते हैं, यानी ये तो मॉडर्न हो गया, कह देते हैं, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है और उसके पास है। और जब हमारे पास आ जाता है तो हम सब लोग इक्वल हो जाते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब ही होता है कि दोज टेक्नोलॉजी हु आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड वी गेट एज सुन एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी वो मेरे पास आ जाता है तो हम मॉडर्न कहलाने लगते हैं। आइए टॉपिक पे बात करते हैं। तो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ रिसोर्सेज, तो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ रिसोर्सेज में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसी होगी, आइए देखते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, पी डैश, दिस इज आवर पीपीसी। अगर रिसोर्स हमारे पास इंक्रीज कर जाते हैं तो पीपीसी क्या होगी, राइट वर्ड को मूव कर देगी। मीन्स कि रिसोर्सेज इंक्रीज होने से अब हम एक्स एंड वाई दोनों का प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ वी गेट मोर एंड मोर रिसोर्सेज। लेकिन अगर यही डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन रिसोर्सेज, तो अब ये क्या होगा, ये लेफ्ट वर्ड को शिफ्ट कर देगा, लेफ्ट वर्ड को, और ये इंक्रीज इन रिसोर्सेज, ये है डिक्रीज इन रिसोर्सेज, और ये है इंक्रीज इन
रिसोर्सेज डिक्रीज कैसे होते हैं और रिसोर्सेज इंक्रीज कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ यू नो दैट कि मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम द नेचर। तो जो भी हमारे पास प्रोडक्शन के रिसोर्सेज मिलते हैं वो सभी हमें नेचर से मिलते हैं, कहीं बाहर से आउटसाइड से नहीं आते या हम उन्हें जनरेट नहीं कर सकते। तो ये जो रिसोर्स हैं अगर हम किसी अदर कंट्री से अपने कंट्री में ला दें तो हमारे रिसोर्स इंक्रीज कर जाते हैं, और अगर हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में चला जाए तो वो रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और एक बात मैं बताऊं बेटा, इस पर जरा विचार करिएगा आप लोग कि किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच जो ट्रेड होता है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप सुने होंगे, जो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है बेसिकली दिखता है गुड्स, दिखती है सर्विसेज, लेकिन एक्चुअली में जो ट्रेड होता है वो रिसोर्सेज का होता है। कि हमारे यहाँ से अगर कोई गुड्स बाहर की कंट्री को जा रही है तो इट मीन्स कि उसमें जो हमारे रिसोर्स लगे हैं अब वो हमारी कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री को चले जाते हैं। ओके बेटा, थैंक्स टू ऑल और टुडे क्लास एंड नेक्स्ट टॉपिक रोटेशन ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा, थैंक्स टू ऑल।